सकता, ये सब नहीं हो सकता। आप एक सेंसिबल पॉलिसी बनाएं जिससे हमारी गाड़ी खराब ना हो और देश का भी फायदा हो। एक गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है 1 किलो गन्ने का, आपको मिलता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 102 रुपए में। बीच का पैसा कौन कमा रहा है? ये जिनकी डिस्टिलरी है। डिस्टिलरी किसके? जो पॉलिसी बना रहे। ये बेटा बढ़ाओ योजना नहीं चल सकती कि इंडिया को छोड़कर बाहर में सब 10% है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंडिया में ओनली 20% है। उसके लिए जो गाड़ी हमारा जो इंडिया में जो गाड़ी आ रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये जो गाड़ी जो BS6 है, गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं, जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, वो आकर पेट्रोल पंप में हल्ला गुल्ला करते हैं। Just over a year after India achieved nationwide availability of E20 petrol in April 2025, meeting its target of 20% ethanol blending 6 years ahead of the original 2030 deadline, public opinion on the implementation of the program has turned increasingly critical. A survey conducted by local circles found that 53% of petrol vehicle owners described the Road Transport and Petroleum Minister's handling of E20 rollout as either disastrous or ineffective, with 42% calling it outright disastrous. By comparison, only 13% of respondents gave the government's handling a positive rating. The survey also revealed widespread concerns over fuel efficiency and vehicle performance. Around 66% of respondents said their vehicle's mileage had dropped by more than 10% after switching to E20 petrol, while 31% said they would prefer the option of using E0 or E10 fuel again, even if it came at higher prices. The government, however, has consistently defended the ethanol blending program. Union Petroleum Minister Hardeep Singh Puri has maintained that the impact of E20 on fuel efficiency is minimal, dismissed much of the criticism circulating online as a make-believe narrative, and clarified that vehicle insurance coverage is unaffected by the transition to the blended fuel. Regulatory changes have continued alongside the rollout. From April 1, 2026, all E20 petrol sold in the country must comply with the minimum research octane number or RON of 95 to improve combustion stability and minimize engine knocking. For now, the government's roadmap remains focused on E20 until October 31, 2026. Any decision to introduce higher ethanol blends will be taken after the Interministerial Committee submits its report and consultations with stakeholders are completed. The local circle survey asked petrol vehicle owners how they rated the ministry's handling of the E20 rollout. Among 22,567 respondents, 42% described the implementation was disastrous, while 5% called it very ineffective and another 6% quoted it quite ineffective. Together, these responses accounted for 53% of all participants expressing a negative opinion. On the other hand, only 2% rated the rollout as superb, 3% considered it very effective, and 8% described it as quite effective, taking the total positive responses to just 13%. Meanwhile, 19% termed the rollout average, while 15% said they were unable to comment according to the survey findings. The results indicate that negative opinions outweigh positive ones by roughly 4-1, suggesting a significant disconnect between the government's messaging and the experiences reported by motorists. The dissatisfaction is also reflected in practical ownership concerns. According to the survey, 66% of owners of petrol vehicles manufactured before 2023 reported a decline in fuel efficiency exceeding 10% after switching to E20 fuel, up sharply from 45% in a similar survey conducted a month earlier. In addition, 45% said they had experienced a moderate to significant increase in engine wear, maintenance requirements, and repair costs. सबसे पहले मैं एक भ्रम को खत्म करना चाहता हूं। हम जो यहां पर इकट्ठा हुए हैं, साधारण लोग, आम आदमी, हम कोई एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ एथेनॉल 0 सस्ते दाम में, एथेनॉल 5, एथेनॉल 10 अवेलेबल किया जाए। दूसरा, एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग प्रोग्राम के जितने भी दस्तावेज है, ARAI रिपोर्ट इंक्लूडेड, वो सब कुछ आप सार्वजनिक कीजिए। तीसरा,
ये जो प्रोग्राम को आपने प्रीपोन किया था, इसको क्यों किया प्रीपोन? 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। चौथा, इसके बाद जो आप प्रोग्राम लगाना चाहते हो, 360 डिग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। और जो कल बातचीत हुई, वन नेशन वन फ्यूल, ये सारी चीजें बंद कीजिए। आपकी गाड़ी में फॉर्मूला के पेट्रोल चल सकता है, ये सब नहीं हो सकता। आप एक सेंसिबल पॉलिसी बनाए जिससे हमारी गाड़ी खराब ना हो और देश का भी फायदा हो, देश का भी लाभ हो। हम इसके पक्ष में हैं। उन्होंने लाया E85 फ्यूल। कितनी गाड़ी बिकी? 3 गाड़ी। मैंने 1 महीने पहले ट्वीट किया था, ये नहीं बिकेगा क्योंकि E85 गाड़ी 2 लाख रुपया ज्यादा महंगे है ऑर्डिनरी गाड़ी से, और उसकी एवरेज कम है, तो आपको पैसे रिकवर करने को 12-13 साल लग रहे। तब भी हम उसके खिलाफ नहीं। आप लाइए E85 लाया, E100 लाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कह रहे हैं, खुद नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी सर हमें अमेरिका का उदाहरण देते और ब्राजील का उदाहरण देते। इन दोनों मुल्कों में प्रोग्राम 1970s में शुरू हुआ। इन दोनों मुल्कों के दस्तावेज सार्वजनिक है, इन दोनों मुल्कों में सारे चॉइसेस अवेलेबल है। वो हमें करवाइए, क्या दिक्कत है? हम सिर्फ चॉइस मांग रहे हैं। ना ही हमें किसी लॉबी ने फंड किया है, ये सेना से, मैं इनको पहली बार मिल रहा हूँ, ये कहे लॉबी से। ये हमारे लोग हैं, ये गुजरात से बेचारे आए, ये चंडीगढ़ से आए, ये दिल्ली से आए। कोई लॉबी ने हमें कोई फंडिंग नहीं दिया है। हम सिर्फ चाहते हैं चॉइस। ये ना ही पॉलिटिकल मंच है, ना ही कोई पॉलिटिकल चीज है। और एक चीज जो यहाँ चल रहा है, अब एक गन्ने के किसान को 3 रुपया 65 पैसा मिलता है 1 किलो गन्ने का। आपको मिलता है एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 102 रुपए में। बीच का पैसा कौन कमा रहा है? ये जिनकी डिस्टिलरी है। डिस्टिलरी किसके? जो पॉलिसी बना रहे। ये बेटा बढ़ाओ योजना नहीं चल सकती। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो गलत है वो गलत है, उसको गलत कहना होगा। और वो भी सारे पेट्रोल पंप से अवेलेबल नहीं है, वो भी सिलेक्ट फ्यू पर अवेलेबल है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका से तुलना करते हो, उदाहरण के तौर पे डॉलर का अगर मैं कन्वर्जन रुपए में करूं, क्योंकि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है, वहां पे एवरेज रेट है 109 रुपया, तो आप कम से कम उस पर अवेलेबल कराइए। अच्छा, पाकिस्तान से तो बहुत तुलना करती है। पाकिस्तान में वर्तमान में भारत के रुपए में 102 रुपया पेट्रोल है, वो बिना एथेनॉल के। तो वहां पर हम कह रहे हैं चॉइस दीजिए। अगर मेरी अपनी गाड़ी में मुझे बिना एथेनॉल के डालना है, वो डालने दीजिए। किसी को एथेनॉल वाला डालना है, डालने दीजिए। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक कंपनी के बड़े एग्जीक्यूटिव ने कहा, आपकी गाड़ी जो 2023 के पहले है तो कोई बात नहीं, आप उसमें डाल सकते हैं एथेनॉल 20, बट उसी गाड़ी के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा है कि आप नहीं डाल सकते। तो तब आपने झूठ बोला या आज झूठ बोल रहे? दूसरी एक मोहतरमा थी, वो कहती है नहीं नहीं नहीं, वन नेशन वन फ्यूल होगा। आपने किनको लाया, कैसे लाया इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को? आपको लगता है कि जनता को समझ में नहीं आता है? आपको लगता है जनता समझ नहीं सकती? आपको लगता है हम पढ़ नहीं सकते? ये कौन सी चीजें हैं? और फिर मैं कह रहा हूं, दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए, जो भी दस्तावेज उसको सार्वजनिक। 2 चीज आदरणीय हरदीप पुरी जी से बड़ी विनम्रता से, आप चाहते हैं कि दिल्ली के लोग रेसिंग कार चलाए या भारत के लोग, पहले वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। दूसरा, रेसिंग के अंदर पिट स्टॉप में जब जाते हो, इंजीनियर्स होते हैं, आपके इंजन को चेंज करते हैं, लगातार सर्विसिंग होती है। हर रेस के बाद इंजन चेंज होता है, इंजन अपग्रेड होता है। या भारत के लोग वो करेंगे हर 1000-1500 किलोमीटर के बाद चेंज। वैसे तो जेट फ्यूल अलग होता है, वही डाल दो तो आपकी गाड़ी उड़ने लगेगी। मतलब आप सोचिए कि देश के पेट्रोलियम मंत्री किस तरह की बात करें। और ये पता है कहां से आता है? उनको लगता है कि भारत के लोगों में उतना कॉमन सेंस नहीं है कि वो समझ पाएंगे। इस घमंड से आप कह रहे हो कि एथेनॉल रेसिंग में चलता है। अच्छा, फॉर्मूला 1 की कल एक दूसरे व्यक्ति ने बात की, फॉर्मूला 1 में एथेनॉल 10 चलता है, एथेनॉल 20 तो चलता नहीं। सारी लड़ाई यहां पर है चॉइस की, दस्तावेज की, ट्रांसपेरेंसी की। हमने जो E10 कार्स हैं उन पे अगर E20 यूज़ करें तो हमने पिछले साल में फाइनेंशियल ईयर 25-26 में करीब 1.5 करोड़ ऐसी गाड़ियां सर्विस की होंगी अपने हमारे मारुति नेटवर्क में, कस्टमर्स की गाड़ियां जो 2023 से पहले की थी, जो E10 कंप्लाइंट थी, E20 नहीं थी। लेकिन उनमें हमने ऐसा कोई इश्यू नहीं ऑब्जर्व किया, ऐसा कोई मीनिंगफुल कंसर्न नहीं आया जो E20 से रिलेटेड हो। ये हो सकता है कि फ्यूल एडल्ट्रेशन की वजह से कोई बहुत ही लिमिटेड पम्प्स, लिमिटेड सिटीज़ में केसेस हों, लेकिन फ्यूल एडल्ट्रेशन का कोई बिल्कुल अलग फिनोमेना है। वो इंडिया में काफ़ी टाइम से था, अभी भी है और रेगुलरली सॉल्व होता रहता है। उसका E20 से कोई लिंकेज नहीं है। हमें हमारे कस्टमर्स से E10 कार्स पे E20 अगर हम यूज़ करें तो ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और उसका रीज़न ये है कि हम जब हमने अपनी E10 कार्स बनाई 2010 से पहले से हम बना रहे हैं E10, उसमें हमने इतने फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी डाले, इतना उसको रोबस्ट बनाया कि वो E20 फ्यूल आराम से ले सकता है। और पूरी इन हाउस टेस्टिंग भी की, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
अभी सरकार में अभी सिर्फ ये ड्राइंग टेबल पर है, थिंकिंग में है। इसका भी बहुत इवैल्यूएशन और स्टडी बाकी है कि E20 के बाद इंडिया को क्या करना चाहिए। एक रास्ता ये भी है कि हम बेस लेवल को E20 पर रखें और जो एक्स्ट्रा इथेनॉल है उसको हम फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो कि E100 या E85, E93, E100 उनमें यूज़ करें। तो अलग अलग थॉट्स हैं, अभी इसमें इवैल्यूएशन बाकी है, लेकिन हमारी जो E20 गाड़ियां हैं वो हायर ब्लेंड्स भी ले सकती हैं।